Welcome to the second lesson of SP, which is sources of corporate finance. Yesterday we've discussed about shares. Shares are divided into two parts. First one is equity shares and another one is preference shares. Okay, shares are divided into two broad or main categories. The first one is equity shares and the another one is preference shares. Equity shareholders are actual owners of the company, whereas preference shareholders, they are enjoying preferential rights at the time of distribution of dividends and all. So now let's discuss about both of this one by one. So first we'll discuss about equity shares and afterwards about preference shares. So let's have a look toward, we can say, features of equity shares. Equity shares. Okay, equity shares are also known as ordinary shares. इन शेयर्स को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड फीचर्स ऑफ इट. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट वन इज परमानेंट कैपिटल. Okay, so the first feature of equity shares are permanent capital. The amount is not refundable. The person who are investing in equity shares, the amount is we can say not refundable. मतलब ये पैसा कभी रिटर्न नहीं मिलेगा, या इसे हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोल सकते हैं. इसे हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोल सकते हैं. आइए देखते हैं. एज आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ शेयर दैट शेयर होल्डर्स आर एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो कंपनी इज रनिंग ऑन देयर मनी, है ना. वॉट एवर अमाउंट दे आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसी के ऊपर हमारा पूरा बिजनेस वी कैन से बेस्ड होता है या रन होता है. That's why the amount is not refundable to the equity shareholders as they are becoming shareholders, as they are becoming owners of your company, and this is also called as permanent capital of the company. जब तक हमारी कंपनी चलने वाली है बच्चों, जैसे कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा इसीलिए कलेक्ट किया था क्योंकि हमारे पास में कैपिटल इतना ज्यादा था नहीं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि हम ओनर्स वी कैन से ओनर्स का दर्जा देते हैं, या इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर कहलाते हैं, तो इनका जो वी कैन से जो भी कैपिटल हम इनसे या जो भी पैसा इनसे हम बिजनेस में लगवाते हैं बच्चों, वो नॉन रिफंडेबल होता है. वो कभी रिफंड नहीं किया जाता है. वी कैन से कंपनी की लाइफ टाइम में, जब तक कंपनी वाइंड अप या शट डाउन नहीं होती है, तब तक तो इनका पैसा कभी रिफंड नहीं किया जाता है. इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स is not refundable. It is assumed as permanent capital of the company. इक्विटी शेयर होल्डर से मिला हुआ जो भी पैसा होता है बच्चों, इसको लाइफ टाइम के लिए समझा जाता है, या वी कैन से इसे परमानेंट कैपिटल समझा जाता है, और ये नॉट रिफंडेबल होता है. कंपनी की लाइफ टाइम में तो ये पैसा वी कैन से रिफंड नहीं होता है. और वी कैन से कंपनी ओके, these shares are also known as, we can say, long term capital. As the person is becoming owner of the company, so but of course the company uses his capital for long term benefits. So this is we can say permanent capital. परमानेंट कैपिटल क्यों कहते हैं हम शेयर होल्डर्स के कैपिटल को बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स के? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह से हमारे कंपनी के मालिक होते हैं, और अगर हम मालिक का ही पैसा रिटर्न दे देंगे तो हमारी कंपनी अच्छे से रन नहीं हो पाएगी या चल नहीं पाएगी. इसलिए इनके पैसे इनको, जब तक कंपनी चल रही है तब तक इनका पैसा इन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा. इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल भी बोल सकते हैं. आइए देखते हैं, मूव ऑन टू द वी कैन से second feature of equity shareholder is, we can say, fluctuating dividend. Okay,
Fluctuating dividend means what? As I told you that equity shareholders are, we can say, owner of the company, as they are treating as owner of the company, and they are having, we can say, a right to inspect books of accounts, है ना? As equity shareholders are owner of the company and they are having a right to inspect books of accounts, to conduct meetings, to give votes, and so on. On the other hand side, the rate of return, है ना? Return rate is not fixed. I'm sorry. The rate of return, है ना, for equity shareholders, yeah, returns is not fixed for equity shareholder as they are owner of the company. If company enjoys, yeah, if a company is earning lots and lots amount of profit, yeah, if a company is earning high amount of profit, at that time they have to enjoy the same amount of profit as they are treated as owner of the company. And if company is, for example, bearing losses, yeah, if a company is suffering from losses, so at that time they also have to bear losses of the company as they are treated as owner of the company. This is the main reason why the rate, why the dividend is fluctuating. कि इनका डिविडेंड क्यों चेंज होता रहेगा बच्चों हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उन्हें हम कंपनी के ओनर की तरह मानते हैं और इनका जो रिटर्न रहेगा ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा बच्चों. अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो पूरा प्रॉफिट कंपनी के मालिक के साथ में, ओनर के साथ में, शेयर इक्विटी शेयर होल्डर में भी बटेगा. अगर कंपनी को लॉस होता है तो बराबर लॉस इन लोगों में भी बटेगा. नाउ द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस इज, है ना, their share, how much share they are having या how much share they are purchasing of that company, उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना परसेंट प्रॉफिट में या लॉस में शेयर बेयर करेंगे. अगर इन्होंने, वी कैन से, 10 शेयर खरीदे हैं या वी कैन से 1000 शेयर अगर इन लोगों ने कंपनी के परचेज किए, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसके 1000 शेयर इन लोगों को जाएंगे. अगर लॉस होगा तो 1000 शेयर में से इनके लॉस की अमाउंट कट की जाएगी. ओके गाइस, सो that's why the rate of return is always fluctuating. वो हमेशा एक सा नहीं रहेगा for equity shareholders. Next one is rights. Now equity shareholder, as they are treated as owner of the company, that's why they are having so many rights. Now let's have a look toward the rights of equity shareholders one by one. क्योंकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बच्चों ओनर बन के ट्रीट किए जाते हैं कंपनी में, तो हमारे ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है बच्चों, इनको बहुत सारे राइट्स होते हैं. जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू वोट, दे आर हैविंग अ राइट टू वोट एंड टू इलेक्ट, वी कैन से, डायरेक्टर्स. क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं बच्चों, तो इन लोगों को वोट करने का हक होता है और ये लोग अपनी मर्जी से कंपनी के लिए डायरेक्टर चूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. ओके, टू शेयर इन प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू इन, वी कैन से, सेकंड पॉइंट, that they are treated as, yeah, they are owner of, they are actual owner of the company, that's why they are having a share in profit of the company. Okay, right to inspect books, है ना, to check books of accounts. Okay, the another right which is, we can say, giving to the equity shareholder is whenever they want to check the books of accounts, easily they'll come and check the, we can say, check or inspect the books of accounts. And the last one is right to transfer share, है ना, easily if they want, है ना, right to transfer share. And the fourth right is whenever they want to transfer their shares, so easily they can transfer their shares. To transfer the shares as per the procedures laid down in the articles of association. But the process of transferring shares from one person to another person, all the things are, all the transferation authorities are laid down in article of
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं बच्चों, उनको बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि उनको वोट देने का हक होता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का हक होता है, अकाउंट्स के बुक जाके वो चेक कर सकते हैं, उसका भी हक होता है, और अगर वो लोग चाहे तो अपने शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है, उसके मुताबिक अगर वो लोग चाहे तो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ नो प्रेफरेंशियल राइट, नो preferential right. Yes, as I told you that equity shareholders are owners of the company and they are not enjoying any preferential right and at the time of, we can say, distribution of dividend. जब कभी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, उस टाइम पे इन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी के ओनर है। सब लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मिलेगा, उनके बाद में इन लोगों को मिलेगा। Move on to the next one, guys, which is controlling power. Okay, controlling power. Okay, controlling power. Now, so many powers are there. So many powers are there in their hand. इनके हाथों में बहुत सारे powers होते हैं, जैसे कि as they are having a right to elect board of directors, और उनके पास में एक और राइट होता है, दे कैन एक्सरसाइज देन वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज, दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज। ये लोग अपनी जगह पे प्रॉक्सीज भी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सीज मतलब एक दूसरा बंदा। कंट्रोलिंग पावर में आ जाता है उनका कि फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस इफ दे आर अनेबल टू अटेंड दैट पर्टिकुलर मीटिंग, तो दे कैन अपॉइंट प्रॉक्सीज ओवर देयर। अगर किसी मीटिंग को ये अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो लोग उनके बिहाफ में या उनके बदले में वहां पे किसी और बंदे को भेज देंगे, जिसे बोला जाता है बच्चों प्रॉक्सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला फीचर हमारा, जो क्या है बच्चों, रिस्क। रिस्क, और इसके अंदर क्या होता है कि हर बार लोग प्रॉफिट ही अर्न करेंगे या अचीव करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स दे हैव टू बेयर रिस्क। द सेवेंथ वन इज, वी कैन से, रेसिजुअल क्लेमेंट। रेसिजुअल क्लेमेंट के अंदर आ जाता है लास्ट। रेसिजुअल क्लेमेंट मीन्स व्हाट? लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, रेसिजुअल क्लेमेंट जैसे कि एक वी कैन से कंपनी के ओनर कहलाते हैं, तो सारे लोगों के ऑल डेज रीपे होने के बाद में इफ बैलेंस इज अवेलेबल, तभी इन लोगों को वी कैन से एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, जब कंपनी बंद होने वाली है बच्चों, तब सारे लोगों को अपने अपने ड्यू देने के बाद में अगर पैसा बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि ये तो कंपनी के ओनर थे, और जब तक सारे थर्ड पार्टीज के लोन क्लियर नहीं होंगे, ओनर अपना हिस्सा नहीं ले सकता है। द नेक्स्ट वन इज नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स, यस, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, या वी कैन से जब बिजनेस बंद होने वाला होता है बच्चों, तब ये लोगों का एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, कंपनी की प्रॉपर्टीज के ऊपर इनका कोई हक नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट में शेयर बहुत मर्तबा ले चुके हैं। अब कंपनी की हालत इतनी खराब है कि कंपनी बंद हो रही है, तो उस टाइम पे ये लोग एसेट्स में से हिस्सा नहीं मांग सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, वी कैन से, बोनस इश्यूज। बोनस इश्यूज क्या होता है बच्चों कि बोनस शेयर, गिफ्ट, इक्विटी शेयर होता है। ओके, बोनस इश्यूज क्या होता है कि बोनस शेयर मीन्स वी कैन से अ गिफ्ट। इट्स अ वी कैन से गिफ्ट टू अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये एक गिफ्ट होता है बच्चों कंपनी की तरफ से, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको और एक्स्ट्रा शेयर जब प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको बोला जाता है बोनस इश्यूज। या कंपनी उनके शेयर की जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को बढ़ा कर देती है या उसमें और शेयर ऐड कर देती है, इसे हम लोग बोलेंगे बोनस शेयर। नेक्स्ट वन इज राइट टू इशू। Next one is right to issue. Company need more capital, so as company issued share for further capital. Okay, right to issue. If a company wants to, we can say, expand their business, या कंपनी अगर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती है,
So in that case, company is again issuing some shares in the market. अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, ये बढ़ाना चाहती है, उस टाइम पे कंपनी मार्केट के अंदर और कुछ शेयर इशू करते हैं, है ना. वी कैन से फॉर कलेक्टिंग फर्दर कैपिटल, फॉर कलेक्टिंग फर्दर कैपिटल इफ कंपनी इज इशूइंग शेयर इन द मार्केट, तो वो कर सकती है. इफ कंपनी वांट्स, तो वो और फर्दर कैपिटल के लिए मार्केट में शेयर इशू कर सकती है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज okay, which is your face value. Now the next one is face value. Face value of equity share is okay. Face value of equity share is generally rupees 10 per share, या we can say rupees 1 per share. फेस वैल्यू मतलब कि क्या, जिन पैसों पे वी कैन से एक पर्टिकुलर शेयर मार्केट में बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो शेयर की जो फेस वैल्यू होती है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की, वो एक शेयर 10 रुपये से ज्यादा का नहीं होता है मार्केट में, या 1 रुपये से ज्यादा का वो शेयर की कीमत मार्केट में नहीं होती है. अब इट्स अप टू कस्टमर चॉइस या इट्स अप टू शेयर होल्डर चॉइस कि कितने शेयर वो कंपनी के खरीदना चाहते हैं. लेकिन कंपनी 1 रुपया या 10 रुपये से ज्यादा, मतलब सिंगल शेयर की प्राइस बता रही हूँ मैं, उससे ज्यादा पैसों में शेयर मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मार्केट वैल्यू. ओके, मार्केट वैल्यू मीन्स व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ओके. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज डिपेंड्स ऑन, वी कैन से, market demand and market supply of that particular share. उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड मार्केट में कितनी है या उस पर्टिकुलर शेयर की सप्लाई मार्केट में कितनी है, उसके हिसाब से उस शेयर का मार्केट तैयार किया जाता है, या उस शेयर की मार्केट में कितनी कीमत होनी चाहिए, ये उसी शेयर की डिमांड या सप्लाई तय करती है मार्केट के अंदर. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेशन इज कैपिटल एप्रिसिएशन. Okay, the 13th point of we can say features of equity shares is capital appreciation. आइए देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है. Okay, for example, a company is selling a single share in market worth ₹10. कंपनी मार्केट में एक सिंगल शेयर 10 रुपये का मार्केट में बेचती है, बट ड्यू टू वी कैन से रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, वो जो शेयर है मार्केट में जो कंपनी 10 का बेचना चाहती है, सो मेनी पीपल्स आर इंटरेस्टेड, है ना, टू इन्वेस्ट अमाउंट इन पर्टिकुलर कंपनी. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अंबानी. एज अंबानी इज अ वेल नोन पर्सन या वेल नोन बिजनेसमैन. नाउ एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनी एज the person is having goodwill in market या reputation in market. Let's take the example of अंबानी. बच्चों, अंबानी जी जो है उनकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन है, इज्जत है, या उनकी गुडविल है, शोहरत है, नाम, नेम एंड फेम है. उसकी बिना पे एक शेयर वो मार्केट में इशू करना चाहते थे 10 रुपये का, पर उनका नाम होने की वजह से मार्केट में उनका जो 10 रुपये वाला भी शेयर है उसको बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो 10 रुपये वाला शेयर उनका 2 रुपये ज्यादा से मार्केट में बिक रहा है. मतलब 10 का शेयर 12 रुपये में मार्केट में जा रहा है या सेल हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, कि द पर्सन, है ना, इज रेडी टू सेल हिज सिंगल शेयर वर्थ ₹10, बट ड्यू टू हिज रेप्यूटेशन उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल शेयर की प्राइस उसको आ जा रही है बच्चों 12 रुपया. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इशूइंग फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर ऑफ ₹10 इन मार्केट, अगर वो बंदा 10 रुपये के हिसाब से 10 शेयर मार्केट में इशू कर रहा था, है ना, बिकॉज द पर्सन नीड्स और द पर्सन वांट 1 लाख कैपिटल, 1 लाख रुपये के कैपिटल के लिए वो बंदा, उसको 1 ही लाख रुपये का कैपिटल चाहिए था, ठीक है, और उसके लिए वो 10 रुपये का एक शेयर मार्केट में 10,000 लोगों को इशू कर रहा था. लेकिन क्या हुआ कि उसका 10 रुपये का ही शेयर मार्केट में 12 रुपीज से बिक गया है. नाउ 10,000 into 12 is your 1,20,000. So over here 20,000 is your appreciation amount of capital.
Means what? Ki the person wants only 1 lakh rupees. The person wants only 1 lakh rupees as a capital from other, yeah, we can say general public. But in that case, the person is earning 20,000 extra. So this is known as capital appreciation. Okay, that's it for today. Thank you so much.